Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Sonal Mehrotra Kapoor and we come to you live from Amethi. This is the RRPG College here in Amethi and we are joined by young voters, both young women and men. And we will be discussing the very pertinent issue that has been thriving this election, particularly from Amethi this time around, which is about the SP candidate Gayatri Prajapati. Just yesterday, remember, the Prime Minister took a jibe at Samajwadi Party. He went out to say, is the alliance between the Congress and the Samajwadi Party as corrupt, perhaps, or the word used by him was pavitra, as Gayatri Prajapati. Now, who is Gayatri Prajapati? He is the SP candidate from Amethi, who just on the 18th, that is Saturday last week, was taken up. The Supreme Court ordered to file an FIR of rape against him. Now, while the Prime Minister accused Akhilesh Yadav, somebody who's already been answering questions on law and order, that how can he induct tainted ministers, today Akhilesh Yadav was in Amethi and he campaigned for the same candidate. However, he almost campaigned. He did not share the stage with Gayatri Prajapati. He did not even take his name. He did not say that vote for this man, but he said, press the button on the cycle. Very interesting times as the Game of Thrones really is being carried out here in UP. But before we begin and go to the voices of these young voters, take a look at the face-off between what did the Prime Minister say and what did we find out from that very same tainted minister when I interviewed him just this morning. एक कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। क्या यही काम किया आपने? ये काम है कि कारनामा? जरा उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी गायत्री प्रजापति जितना पवित्र है क्या? ये राजनीति करी गई है आपके साथ? ये राजनीति की गई है, ये धोखा, ये जो है अमेठी में एक गरीब के बात। मैंने तो कह रहा हूं कि जब हमारी बात सुनने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज होती है, अब कोर्ट दर्ज करती है तो पहले गिरफ्तारी हो जाती है। आज तक ऐसा केस हुआ? Well, you heard both the politicians there, but what did we discover while the rally of Akhilesh Yadav was on in Amethi, listening to very interesting voices from people who were sitting on the ground. आप यहाँ पर सीएम साहब की जो स्पीच है वो रिकॉर्ड कर रही हैं। यहाँ पर वो आए हैं प्रजापति जी के बारे में बात करने के लिए। उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने एक औरत का रेप करा है। आपको लगता है सही मामला है? मेरे को तो नहीं लगता है सही है। हाँ। पर हम नहीं जानते हैं। ये कहा जा रही है समाजवादी पार्टी तो औरतों के हित में काम नहीं करेगी, गुंडाई करती है। नहीं, फिर करेंगे करेंगे। हाँ। किस पर विश्वास है आपको? साइकिल पे। हाँ। तो जो बयान आया है कि मंत्री जी के ऊपर जो केस चला है, वो बताइए, अगर किसी माँ, कोई माँ अगर उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है तो बार बार क्यों लेके जाएगी वहाँ पे? ये सिर्फ सब मंत्री जी के खिलाफ साजिश है, सब भड़काने, जनता को भड़काने के लिए और कुछ नहीं। ये कहा जा रहा है यहाँ पर जो कैंडिडेट है प्रजापति के खिलाफ कहा जा रहा है केस है रेप का। प्रजापति के खिलाफ नहीं, प्रजापति की तरफ से। आपको लगता है केस गलत है? नहीं, प्रजापति के खिलाफ नहीं नहीं है। अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, ठीक, तो ये गलत है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए। Well, you heard the people on the ground, but let's just give you a little brief about what the constituency of Amethi is all about. Now, Amethi has 3 primary candidates running for election this time around. Number 1 candidate from the BJP happens to be the second wife of somebody who's a very well-known person here in Amethi called Sanjay Singh. Now, the second wife of Sanjay Singh is fighting on a Congress ticket. His first wife has been given a ticket from the BJP.
Many at this point calling it the clash of the queens of Amethi. Now the third candidate is from the Samajwadi Party, which is Prajapati himself. Another candidate, Prajapati happens to be one of them who's actually accused of rape. While all this is happening, it's important to understand that this entire campaign of Samajwadi Party and Congress alliance has been based on the fact that they will not be fielding candidates together. However, here in Amethi, very interestingly, the Samajwadi Party candidate, earlier known to be Stronghold, now tainted Minister Gayatri Prajapati, is the only one contesting against his alliance partner, which is the Congress. So that being said, we'll now go to the voters to try and understand from them. I'm joined by these women here. मुझे ये बताइए कि आज आप लोग रैली में थी, जब मैं देख रही थी आप लोगों को, आपने सुना अखिलेश जी को, क्या लगा आपको? आपको ये ऑड नहीं लगा कि गायत्री प्रजापति कैसे स्टेज पर थे ही नहीं, अखिलेश अकेले ही रैली करके चले गए? जी और था। दोनों को साथ में होना चाहिए, और जो गलत है वो तो गलत है, जो सही है वही सही होना चाहिए। अगर वो रेप के अक्यूज पाए जाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो जिसका कैरेक्टर एकदम क्लियर हो, ऐसा ही होना चाहिए, और वही हम सब लोग चाहते हैं। तो ये सही और गलत जो है तो अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिसीजन। तब तक के लिए प्रजापति को रहना चाहिए यहाँ का कैंडिडेट, आपको लगता है? जी रहना चाहिए। हाँ, आप मुझे सुबह बता रही थी कि एक तरह से मुझे जो सेंस मिल रहा था कि लोगों का विश्वास अखिलेश में ज्यादा है, प्रजापति में कम है। जी हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, और प्रजापति जो है वो तो उनको अगर जनता चुनती है तब जा करके जो है बनेंगे, अगर नहीं चुनती है तो फिर कोई जिसको चुनेगी वो होंगे। मुझे ये बताइए, गायत्री प्रजापति जो हैं पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं अखिलेश यादव की सरकार में, उनको उस समय एक माइनिंग स्कैम के अंतर्गत हटा दिया गया था कैबिनेट से, अखिलेश नहीं हटाया था, फिर उनके पिताजी ने वापस उनको ले लिया और फिर उनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दे दी। अब ये रेप केस का मामला आया है। यूपी में जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो काफी इनफेमस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप लोगों को लगता है इसके दरमियान ये थोड़ा सेंसिटिव मामला हो गया? यस मैम, सेंसिटिव तो है ही है ये मामला, क्योंकि इसमें प्रजापति का नाम सीधे सीधे आ रहा है। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि ये चीज सही है कि गलत, क्योंकि इसका जो फैसला है वो सरकार लेगी, वो मतलब कोर्ट लेगी, कोर्ट करेगी। तो ये चीज बहुत आसान नहीं है कह देना कि वो व्यक्ति सही है कि गलत है। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप जैसे जो यंग वोटर्स है, जो महिलाएं हैं, जो सीधे सीधे एट द रिसीविंग एंड है लॉ एंड ऑर्डर की, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसे लीडर्स को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैम, एक बार जब किसी भी मंत्री के ऊपर उंगली उठ जाती है तो फिर जनता को फिर उस मंत्री के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है अखिलेश जी यहाँ पे आए और उनके साथ मंच शेयर नहीं किया, क्योंकि जनता वो जानते हैं कि जनता को क्या पसंद है, और वो एक युवा और सशक्त नेता हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी हो एकदम सही हो और गलत ना हो, इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया उनके साथ। मेन बात यही था। पर प्रजापति जी, मैं आपको अगर पूरा सीक्वेंस बताऊं क्या हुआ आज सुबह। पहले प्रजापति जी ने आके स्टेज पे बात करी, वो रोए और उन्होंने कहा अब मैं स्टेज छोड़ूंगा, मैं तभी वापस आऊंगा जब अमेठी की जनता मुझे खुद चुनेगी। उसके बाद वो आए नहीं, तो उनका जो रोना हुआ या उन्होंने एक तरह से जो अपॉलॉजी मांगी, वो किसी, आपको लग रहा है, अपील करी लोगों को? जी बिल्कुल अपील की, लेकिन जहाँ तक बात जनता की है तो जनता तो यही अभी जो खुल के आया है, यही आया है कि वो रेप केस में आए थे, तो जनता का विश्वास तो कहीं न कहीं हटा है। हम लोगों का जो चुनाव का मुद्दा है वो हमेशा से यही रहता है कि शिक्षा, सुरक्षा और ये बेरोजगारी, तीन चीजों को लेकर रहता है। लेकिन अगर ये नारी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने यही आ रहा है कि नारी सुरक्षा ये नहीं दे पा रहे हैं, ये खुद जब रेप केस में फंस चुके हैं तो नारी सुरक्षा क्या देंगे? तो इसलिए आई थिंक शिक्षा, सुरक्षा और बेरोजगारी, ये तीन चीजें आपने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट। आई वांट टू गो टू द मेन हियर एज वेल। मुझे आप बताएं, शिक्षा, सुरक्षा और इन्होंने बेरोजगारी की बात करी। अमेठी एक तरह से वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी तो है, पर यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हुआ है यहाँ हमारे राहुल जी और संजय सिंह द्वारा यहाँ पे कई विद्यालय खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सुरक्षा के लिए जब भ्रष्ट मंत्री ही रहे तो क्या सुरक्षा की जा सकती है? तो मंत्री जी की गलती है, नेताजी की गलती नहीं है? अरे तो नेताजी ने उनको निकाल दिया था, लेकिन मंत्री जी आ गए। आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके मामले में? आपको लगता है अखिलेश का यहाँ पर आके उन्होंने जैसे बात करी और कहा कि नहीं, उन्होंने नाम तक नहीं लिया उनका, उन्होंने बस इतना कहा कि आप साइकिल पे बटन दबाइएगा?
जी उनको अखिलेश जी को पता है ये चीज़ें कि हम अगर शेयर करेंगे तो हमारा वोट कहीं ना कहीं कट जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता, अमेठी की जनता को पता है ये चीज़ कि मंत्री जी सही नहीं है, उनका नाम कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं और ये बात सही है। इसलिए जनता की निगाहों में ऊंचा उठाने के लिए वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मंत्री जी सही हैं। जी तो मैं अभी जैसे पूछ रही थी कि जैसे प्रजापति जी ने आके आंसू बहाए स्टेज पर, उन्होंने कहा कि मुझे अगर मैं गिल्टी हूं तो कोर्ट डिसाइड करे, आपको लगता है वो कुछ अपील हो पाया है? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, वो मंत्री जी अपने दोष को छिपा रहे हैं बस।